So functions of marketing is what we were doing. Under this, we were talking about 12 functions. We have to talk about 12 functions. तो इसका निमोनिक हमने बनाया था गुड मॉर्निंग, कॉफी पियो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिजनेस स्टडीज पढ़ो, सो जाओ. This is the mnemonic for this, and out of this we have covered quite a lot. Did you attend Friday's class, Samriddhi? Okay. So in this we have covered gathering and analyzing market information. We have covered marketing planning. We have covered consumer support services, product designing and development, packaging and labeling. Then we have done standardization and grading, pricing of the product. Yes, तो pricing तक हमने कर लिया था. Now we have to talk about the further functions. ठीक है, तो आप फ्राइडे तक की क्लास कवर करेंगे तो आपके ये सभी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, राइट विषय? So moving on to the 9th function, that is promotion. ये किसी ऑर्डर में नहीं है, आप कैसे भी इनको लर्न कर सकते हैं. And this mnemonic would help you to learn because there are 12 points. तो बहुत ही सिंपल है बच्चे. Promotion. Now you will study about promotion in detail further in the chapter, and this is one of the elements of marketing mix. There are 4 elements of marketing mix जिसे हम 4 P's भी कहते हैं. Yes, Atharv, do you know them? Product, place, price, promotion. You have to, yes, you have to cover the classes because then there'll be too much backlog. This is a big chapter. तो प्रमोशन का मतलब सिंपल सा होता है कि हमें अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और ना सिर्फ बताना है, हमें उन्हें परसुएड भी करना है, इन्फ्लुएंस करना है, प्रभावित करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदे. दैट इज हाउ वी विल प्रमोट आवर प्रोडक्ट. वी वांट टू टेल everyone about our product, and not just tell but also persuade people to buy our product. Can you understand this? Say. लिखेंगे promotion of products and services involves informing the customers about the firm's product, its features, etc. तो you are telling the customers कि ये ऐसा ऐसा हमारा product है, और उसके बाद you are persuading them also. Informing the customers about the firm's product, its features, etc., and persuading them to purchase these products. To purchase these products. और आप ये अभी प्रमोशन मिक्स आपने पढ़ना है लेटर इन द चैप्टर. सो हमारे सिलेबस में 4 प्रमोशनल टूल्स हैं which we have to talk about. The 4 important methods of promotion which we will study about in detail include PAPS. So personal selling, advertising, public relations, and sales promotion. How can you remember this? PAPS. Right, Atharv? Atharv. Yes, Samriddhi?
ओके। अब ये क्या होते हैं एग्जैक्टली ये आप आगे समझेंगे विषय। और ऐसा नहीं है कि इसमें से हम एक ही टूल यूज करेंगे, हो सकता है इसमें से हम कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स यूज करें। सपोज वी आर यूजिंग एडवर्टाइजिंग, ऑल्सो वी आर यूजिंग सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक चीज के साथ दूसरी चीज फ्री मिल रही है, ऐसे होता है, लाइक यू बाय अ टूथपेस्ट एंड यू गेटिंग अ टूथब्रश फ्री विद इट। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सेल्स प्रमोशन। तो क्या आप इसमें से एक ही टूल यूज करेंगे, और यू कैन ऑल्सो यूज कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स? व्हाट डू यू थिंक? We can also use the combination more than one. So let me tell you again that इसकी डिटेल हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. These are in your syllabus. Okay. Last sentence. A marketer has to take several crucial decisions with respect to promotion of the product. A marketer has to take several crucial decisions in respect of promotion of the products and services. जैसे, we'll talk about some decisions. जैसे कि आप कितना बजट यूज करेंगे, how much can you spend on promotion? So that is deciding the promotion budget. Then the promotion mix. Mix मतलब वही combination. Will you use one of these or two of these or all three? I mean all four. So you have to also talk about that. The promotion mix. That is the combination of the promotional tools. The combination of the promotional tools to be used. Simple है विषय. So these are the functions of marketing. अभी तक हमने 4 P's में से product कर लिया है, wherein we talked about 3 important product related decisions. समृद्धि बताइए 3 important product related decisions. Yes, branding, labeling, packaging. Those are the important product related decisions. उसके बाद हमने start किया था place, which is also termed as physical distribution, जिसमें हमें 2 बातें करनी होती है. One is the physical movement of goods from the producers to the consumers, and second is the chain or the channel of distribution which we have to use. तो उसमें से हमने channels of distribution वाला टॉपिक अभी करना है. Further, we talked about the components of physical distribution. Samriddhi, if you have covered the classes, can you tell the components of physical distribution? Order processing, transportation, warehousing. No. Components of physical distribution are not that. There are 4 points: order processing, transportation, warehousing, and inventory control. Okay. So if you have missed any class, please go through it. These are components of physical distribution. Okay, आगे चले. Further here, have you written?
देन द 10th फंक्शन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. इसलिए मैं आपको रिपीट करके बता रही थी. तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं. वैसे वही दो बातें होती है इसमें कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे ट्रांसपोर्ट करें फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द टारगेट मार्केट, और हम क्या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग इंटरमीडियरीज, बीच में कितने लोग होने चाहिए, लाइक मिडलमैन. सपोज मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को सेल कर रहा है. इज इट पॉसिबल? यस, इस बोलते हैं जीरो लेवल चैनल. कैन यू गिव एन एग्जांपल जहां पे मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को सेल कर रहा है? या यस, जैसे वेरका का मैंने एग्जांपल दिया था. उनकी जो फैक्ट्री है वहीं पे दे हैव एन आउटलेट ऑल्सो एंड दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स देयर एज वेल. तो दैट इज अ जीरो लेवल और डायरेक्ट चैनल. बट इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. कोई भी सोच लो, अगर सामने ही प्रोडक्ट बन रहा है और वही कस्टमर को बेच रहा है, इवन इन अ शॉप लाइक यूर बाइंग समोसास, दैट इज ऑल्सो अ जीरो लेवल ना. अगर सोचा जाए दैट इज ऑल्सो अ जीरो लेवल और डायरेक्ट चैनल. बट देयर कैन बी सेवरल अदर एग्जाम्पल्स. ऐसे ही वन लेवल भी होता है जिसमें बीच में रिटेलर हो जाता है. अब वही वेरका का जो मिल्क पैकेट है वो आप या तो सीधा वेरका के फैक्ट्री से जाके भी ले सकते हो, या आपके घर के पास जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है वहां से भी ले सकते हो. तो वो हो गया बीच में रिटेलर. बट जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, क्या उसमें बहुत लंबे चैनल्स यूज होते होंगे? नो ना. यू कैन इमेजिन दिस. वैसे हमने इसके बारे में डिटेल में बात करनी है. सो टू लेवल भी हो सकता है जिसमें बीच में होलसेलर होता है. थिंक अबाउट गारमेंट्स, क्लोथ्स, या फिर जैसे बेड शीट्स होती है, डेकोर की आइटम्स होती है, उसमें बीच में होलसेलर भी होता होगा क्योंकि काफी जगह पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्ट, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कवर करना है, और कई बार बीच में एजेंट भी होता है. So we will talk about this in great detail, but all this is a part of what? Physical distribution. So यहाँ पर आपको टू इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं. वैसे ये आप लर्न भी करेंगे, ये आपसे पूछ सकते हैं वो. टू इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. One would be decision regarding, ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुकी हूँ when I was talking about physical distribution as an element of marketing mix. Regarding channels of distribution, or the marketing intermediaries, इनको intermediaries भी कहते हैं of course, wholesaler, retailer, agent. And second decision is कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे फिजिकली मूव करेंगे from the place where it is produced to the place where it is required for consumption. Are you going to use road, railways, air, even water transport? क्या मीन्स आप यूज करेंगे, फिजिकली कैसे मूव करेंगे प्रोडक्ट को? दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. Physical movement of the product from where it is produced to a place where it is required by the customers for their consumption.
ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बातें, बट हमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे अभी बातें करनी है. एंड components of physical distribution which we have already covered. मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मेन बातें होती हैं. सो दोज आर 4. वन इज ऑर्डर प्रोसेसिंग. अगर वन लाइन में बताना हो तो जब आपको ऑर्डर मिला है कस्टमर से तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको टाइमली प्रोडक्ट पहुंचाएं और एक्यूरेट प्रोडक्ट पहुंचाएं. So speedy and accurate delivery of the product. Then transportation is the physical movement of goods. Warehousing is storing the goods so as to create time utility in them. And inventory control कि अपने पास कितना stock आपको हर वक्त रखना चाहिए. We have already talked about these. Do you understand? अंडरस्टैंड तो तभी होगा कंप्लीटली जब आप वो क्लासेस कवर कर लेंगे. ओके, सो 10 पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं अंडर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. नाउ 11th, ट्रांसपोर्टेशन. देखो वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ पार्ट ऑफ, यस, बट सिंस इट इज सो इम्पॉर्टेंट इसको एक सेपरेट फंक्शन भी बताया गया है. इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. हेडिंग देंगे ट्रांसपोर्टेशन. Can we talk about it? Transportation involves physical movement of goods from one place to the other. As generally, the users of products, particularly consumer products, are widespread. Consumer products जैसे आप economics में भी पढ़ते हो, durable, semi-durable, single use and services. Imagine Maggi. Maggi कितना ज़्यादा widespread है all over the country. तो मैगी के लिए तो वो बहुत बड़ा चैनल यूज करते होंगे, बहुत सारे इंटरमीडिएरीज होंगे बीच में. तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, सोप, बिस्किट्स, हेयर ऑयल, फेस क्रीम और चिप्स, मैगी पैकेट्स, इनका जो यूजर्स है, इनके जो यूजर्स हैं वो वाइड स्प्रेड है एंड जियोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द प्लेस वेयर दीज आर प्रोड्यूस, और दूर दूर है. It is necessary to move them to the place where it is needed for consumption or use. For example, tea produced in Assam has to be transported not only within the state but also to far off places like Tamil Nadu, Punjab, Jammu and Kashmir and Haryana, Rajasthan where it is consumed. वैसे तो tea is consumed all over the country almost. तो असम से उसको अब कैसे transport करना है, this is an important factor. A marketing firm has to analyze its transportation needs after taking into consideration various factors such as the nature of the product. अब प्रोडक्ट ऐसा है अगर जो खराब हो सकता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट तरीके से होगी. फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स प्रोड्यूस्ड इन लेट्स से हिमाचल प्रदेश, दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द कंट्री ऑलमोस्ट. हाउ? क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज सच कि ये पेरिशेबल है, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन पे तो आपको और ज़्यादा ध्यान देना होगा. प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन वगैरह तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ सकता है. कॉस्ट एंड लोकेशन ऑफ टारगेट मार्केट, कहाँ तक आपने पहुँचाना है. एंड टेक डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच आई टोल्ड यू, लाइक रोड, रेलवेज, एयरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, क्या यूज करना है हमने, एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स. सिंपल सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है. फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स. डू यू अंडरस्टैंड? अभी मैं आपको केस स्टडीज दिखाती हूँ बच्चे आफ्टर वी आर डन विद द फंक्शंस.
involves physical movement of goods from one place to the other. लिखा है यहाँ तक? Okay. जैसे users of consumer goods are generally widespread, तो देखना पड़ेगा कैसे ट्रांसपोर्ट करें. As generally the users of products, particularly consumer products, sorry, are widespread and geographically separated from the place where these are produced. Separated from the place where these are produced, it is necessary to move them to the place where it's needed for consumption. To move them to the place where it is needed for consumption. Or use. Example, tea produced in Assam. ये अब आप एग्जाम्पल बुक से देख लेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे पॉइंटर लिख रही हूँ. पेज लिख लीजिए अपनी बुक का, इसी बहाने आप बुक भी खोलेंगे. And you will read this example like tea produced in Assam has to be transported not only within the state but to other parts of the country like Punjab, Haryana, Tamil Nadu, etc. अब मार्केटर को कई डिसीजंस लेने पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, लाइक what is the nature of the product, what is the location of the market, and which mode of transport to be used. All these decisions. A marketer has to consider various factors like nature of the product, किस टाइप का प्रोडक्ट है, cost and location of target market. So location of target market, mode of transportation क्या यूज करें, etc. सिंपल है. Are you able to understand?
The last point. Again, storage or warehousing is a part of physical distribution, but it is so important that they have shown it as a separate function also. तो जैसे आपको पता है कि जब एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और जब वो सेल होना है उसके बीच में टाइम गैप होगा. अब क्या करें? एकदम से प्रोडक्शन के बाद सीधा सेल तो हो नहीं जाता है. So for this time we have to store the products, the goods. और इस तरह से स्टोर करना है कि उनमें टाइम यूटिलिटी बनी रहे. मतलब टाइम के साथ उनकी वैल्यू कम ना हो जाए या वो खराब ना हो जाए. So we need to properly store them. जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में यू कैन इमेजिन हार्वेस्टिंग के बहुत टाइम बाद वो भी सेल होता होगा. देन इवन वूलन क्लोथ्स जैसे आप फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर उनको स्टोर करोगे और विंटर्स में उनकी ज़्यादा सेल होगी. सो usually there is a time gap between the production or procurement of goods and their sale or use. It may be because of irregular demand for the products, such as in case of woolen garments or raincoats, or there may be irregular supply because of seasonal production, as in case of agricultural products. Agricultural products को तो हम बहुत ही ज़्यादा स्टोर करते हैं आजकल. Almost हर fruit और vegetable all the year round मिलने लग गया है because we are storing them in godowns and warehouses. So agricultural products में तो हम बहुत warehousing use करते हैं. In order to maintain smooth flow of products in the market, there is a need for proper storage of the products. Yes, of course. There is a need for storage of adequate stock of goods to protect against unavoidable delays in delivery or to meet our contingencies in the demand. कुछ तो आप वैसे भी स्टोर करके रखोगे क्योंकि डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है. सपोज आपने सोचा था 50,000 यूनिट सेल होंगी बट ज़्यादा सेल हो रही है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखोगे हमेशा और उसको फिर स्टोर कर लोगे ताकि डिमांड में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है यू कैन कवर इट अप. सो कंटिंजेंसीज इन डिमांड. सो वेरी सिंपल विषय स्टोरेज और वेयर हाउसिंग. ये हमने आगे भी पढ़ा है जो मैंने आपको अभी कंपोनेंट्स लिखवाए हैं. देयर ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट दिस वेयर हाउसिंग. तो या तो आप यहाँ से लर्न कर लो जो हमने ऑलरेडी लिख लिया है. इग्नोर दिस क्रॉस साइन. यू डू नॉट हैव टू स्पेशली लर्न दिस अगेन. आप वहीं से इसका कंटेंट लर्न कर सकते हो क्योंकि ये रिपीट हो रहा है. कैन वी राइट दिस नाउ? Usually there is a time gap between the production of goods. और सिर्फ प्रोडक्शन नहीं हो सकता, आप मैन्युफैक्चरर ना हो, आप ट्रेडर हो बस, तो आप सामान कहीं से खरीदते हो और कहीं बेच देते हो, तो यू आर प्रोक्योरिंग द गुड्स. आपको भी स्टोरेज करनी पड़ सकती है. ऑल्सो रॉ मटेरियल को भी स्टोर करके रखना पड़ सकता है. So time gap between production or procurement of goods and their sale or use. जैसे प्रोडक्शन के लिए सेल वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट के लिए यूज, क्योंकि सपोज यू आर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल और अभी वो बाद में यूज होना है, तो जितना टाइम है उसके लिए आप उसे स्टोर करेंगे. राइट? यहां तक लिखे. लिखिए आशीष. It may be because of irregular demand, for the products
एज इन केस ऑफ, मतलब जो सीजनल प्रोडक्ट्स है उनको फिर आप स्टोर करके रखोगे, गारमेंट्स और रेनकोट्स, और इरेगुलर सप्लाई। इरेगुलर सप्लाई मतलब, अब देखो जब एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है वो तो नेचर पे भी डिपेंड करता है कि कितनी प्रोडक्शन होगी। तो जितनी प्रोडक्शन हो रही है पहले तो सारा उसको हार्वेस्ट कर लो, अब फिर देखेंगे कितना सेल हो रहा है। तो इरेगुलर सप्लाई, क्योंकि अब ये तो नेचर के ऊपर है टू सम एक्सटेंट कि मेरे कितनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो रही है। ज्यादा प्रोडक्शन हो गई है अगर और वो सेल नहीं हो पा रहा है तो फिर ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्टोर इट, बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन बताइए जो बहुत फूड प्रोडक्ट्स स्टोर करती है। FCI, what is the full form? Yes. तो जैसे MSP पे फार्मर्स से क्रॉप्स खरीद के, अब वो क्या करेगी गवर्नमेंट, उसको फिर स्टोर कर लेगी, इन केस ऑफ इमरजेंसीज फिर रिलीज करेगी, बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन सच एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। Like sugarcane, rice, wheat, cotton, etc. There is a need for proper storage of the products एक तो रीजन है ताकि स्मूथ फ्लो बना रहे मार्केट में, टू मेंटेन स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। और सेकंड, अगर कोई डिलीवरीज में डिलेज होते हैं कि पीछे से सामान ही नहीं आता, तो आप तो अपने पास स्टोर करके रखो ना फिर। अगर आपको लगता है पीछे से सामान ही नहीं आता, डिलेज होते हैं, तो यू शुड स्टोर सम विद योर सेल्फ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट unavoidable delays in delivery, और अगर डिमांड ऊपर नीचे होती है आप, तो उसके लिए भी आपको स्टोर करके रखना चाहिए। कोई पता नहीं कब कितनी डिमांड हो जाए, मे बी ज़्यादा हो जाए जितना सोचा है उससे, तो यू शुड स्टोर सम विद योर सेल्फ टू मीट आउट contingencies in the demand. यहाँ तक लिखिए। बताइए मुझे, आफ्टर सेल सर्विस हैंडलिंग कंप्लेंट्स किस एलिमेंट का पार्ट है, किस एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट है? मार्केटिंग मिक्स, मैंने क्या बोला, मार्केटिंग मिक्स किस एलिमेंट का पार्ट है आफ्टर?
यस, देखो आफ्टर सेल सर्विस मैंने पहले भी हाईलाइट किया था कि आपको लग सकता है कि ये प्रमोशन का पार्ट है, बट एक्चुअली नॉट. दिस इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ. तो आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कंप्लेंट्स, ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट. मैंने हाईलाइट भी करवाया है बुक में, आपको मार्क करवाया है. यहां तक लिखे. written. Yes, अथर्व. ओके देखो, जैसे व्हाई एम आई आस्किंग यू, इस तरह के क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं. यहाँ पे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. तो 4 एलिमेंट्स होते हैं: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. Maruti Vega Limited entered into the market with colored televisions and have now introduced products like audio systems, air conditioners, washing machines, etc. The company is not only offering the products but also handling complaints and offering after sales services. तो कौन सा एलिमेंट है बच्चे? प्रोडक्ट. डू यू अंडरस्टैंड? इस टाइप के 1 मार्कर्स आर ऑल्सो पॉसिबल. नाउ एक बार सभी फंक्शंस को अपने सामने रखिए. गुड मॉर्निंग, कॉफी पियो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिजनेस स्टडीज पढ़ो, सो जाओ. 1 2 3 4. यस, अब आपने क्लासेस मिस की हुई हैं, बट स्टिल ट्राई टू आंसर द केस स्टडीज विच आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू नाउ. एक बार देख लो. गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, प्राइसिंग, promotion, packaging and labeling, physical distribution, branding, standardization and grading, transportation, product designing and development, storage or warehousing. चलिए, so यहाँ पर इस केस स्टडी में आपको 3 functions of marketing बताने हैं. ठीक है, out of 12, 3 you have to tell, which are there in the case study, of course. Radhika was a student of business studies of class 12. Her father was a farmer who grew different varieties of rice and was well versed in the various aspects of rice cultivation. He was also selected by the government for a pilot project on rice cultivation. As a project work in business studies, she decided to study the feasibility of marketing good quality rice at reasonable price. Her father suggested her to use the internet to gather customer views and opinions. Guess कर सकते हो? Easy है. Right. She found that there was a huge demand for packaged organic rice. She knew that there was no predetermined specifications in case of rice, because of which it was difficult to achieve uniformity in the output. ये भी मैंने आपको highlight किया हुआ है. Predetermined specifications, uniformity and consistency in output is related to good standardization and grading. To differentiate the product from its competitors, she gave it the name Malabari Organic Rice and classified it into 3 different varieties, namely Popular, Classic, Supreme, based on the quality. Classifying on the basis of quality is actually grading, and giving name which will help her in product differentiation. If you give a name to your product and it makes your product different from other products, that is branding. तो यहाँ पे 3 points हो गए. Gathering and analyzing market information, standardization और grading आपकी बुक में साथ में ही दिया हुआ है, और यहाँ पे दोनों की बात हो गई. Uniformity in output also, and classification into different groups, and third is branding. Do you understand? Standardization and grading, you are saying? दोनों लिखेंगे वैसे, हाँ, मतलब दोनों लिखेंगे. एंड इफ यू हैव टू कोट लाइंस तो हम दोनों लाइंस कोट करेंगे.
स्टैंडर्डाइजेशन के लिए वो यूनिफॉर्मिटी वाली लाइन, और ग्रेडिंग के लिए क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, राइट? ओके, आगे चलते हैं. सो फंक्शंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट विषय. दिस केस स्टडी आई शोड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, बट तब हमने ये कंप्लीट नहीं की थी बिकॉज तब तक सारे फंक्शंस नहीं हुए थे. हियर वी हैव टू टॉक अबाउट 5 मार्केटिंग फंक्शंस, मतलब functions of marketing. Since childhood, Nero and Janak had been watching their grandmother procuring wheat from the market, washing it well, drying it, and converting it into atta. They conducted a survey to collect data to identify whether there is demand for ready-made atta, collect data, gathering and analyzing market information, and realize that with the growing number of working women, it is the need of the hour to manufacture high-quality atta. They named their product Srijan and set up Srijan Atta Factory at Jaunput village. Naming the product. Branding. Yes, Adhar, do you also understand? To penetrate in the market, they decided to keep the price low. They're talking about pricing of products. This is another function. For maintaining smooth flow of their products in the market and avoiding delays in delivery, it was decided to store wheat at SKM Services, which had scientific processes and logistics facilitating quick delivery. So, अभी हमने पढ़ा है to maintain smooth flow and avoiding delays in delivery. क्या होना चाहिए? Storage or warehousing. They also set up an online complaint portal to take care of the consumer grievances. ये भी मैंने last class में बताया था. अगर लोगों को कोई problem है, they want to file a complaint or anything, तो we have something called customer support services, CSS. So we'll talk about that. तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हो गए बच्चे? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, एंड ऑल्सो customer support services. Have we covered 5? Yes. Do you understand? Okay. This also I did in the last class. I mean this function. I try to guess. As it is words आपकी book में लिखे हैं. Identify the marketing function which the marketing manager was discussing with Kumar. Kumar wanted to purchase a fuel-efficient car having latest standards regarding minimization of pollution. He saw an advertisement offering such a car and visited the showroom of the company, wherein the car was displayed. In his discussion, the marketing manager told him that company is providing credit facilities, maintenance services, and many other effective services which help in bringing repeat sales and developing brand loyalty. Can you guess? Services? No. Customer support services. ये as it is हमारी book में लिखा है. This was a part of last class, so make sure to cover it. कस्टमर को कुछ हम सर्विसेज देंगे, अगर उसका प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो जैसे मेंटेनेंस सर्विसेज और ग्रीवियंसेस भी मैंने अभी आपको बताए थे. हियर आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कंप्लेंट्स, मेंटेनेंस सर्विसेज, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, ऑल्सो ग्रीवियंसेस. अगर हम उनको अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इस टाइप की, तो वो दोबारा हमारा प्रोडक्ट खरीदने आएंगे. रिपीट सेल्स एंड ऑल्सो क्रिएटिंग ब्रांड लॉयल्टी. इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था लास्ट क्लास में. जैसे सपोज आपने कैरियर, यस, which one? How exactly? Under which?
क्रेडिट फैसिलिटी नहीं, वहां पे वो होता है फाइनेंसिंग एट 0%. फाइनेंसिंग इज अन अदर एस्पेक्ट, जिसमें क्या होता है कि अभी आप डाउन पेमेंट कर दो और फिर आप धीरे धीरे पैसे देते जाना. कई बार इंटरेस्ट लगता है, कई बार नहीं लगता है. दैट इज द ओनली थिंग. बट अदरवाइज क्रेडिट फैसिलिटीज नॉर्मल की अभी ले लो, पैसे बाद में दे देना. उसमें कोई फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि अभी डाउन पेमेंट भी दो. सो आप जो ये बोल रहे हैं क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट सर्विसेज, पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की बात हो रही है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि दिस के नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी अदर कॉन्सेप्ट. दिस कैन बी. अगर हम बात करें फाइनेंसिंग एट 0%, इट कैन बी प्रमोशन ऑल्सो. तो यहाँ पे प्रमोशन में तो हम मेजरली इन चारों के बारे में बात करते हैं. और सेल्स प्रमोशन में वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज लाइक आई टोल्ड यू फाइनेंसिंग एट 0%. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अदर क्रेडिट सर्विसेज, अभी प्रोडक्ट ले जाओ, पैसे बाद में दे देना, तो दिस इज ऑल्सो a kind of support service that you're giving to the customer, right? ओके. सो जैसे आपने कैरियर का एसी खरीदा और वो हर लेट्स से एवरी ईयर और एवरी 6 months दे कम एंड दे गिव सर्विसिंग. आपका वो एसी पूरा अच्छे से सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं, उसको पैक वैक करके रख जाते हैं अगर विंटर्स आने वाली है, और अगर समर्स आने वाली है तो वो उसको प्रॉपर क्लीन वगैरह कर देते हैं. तो दिस इज व्हाट लाइक अ मेंटेनेंस सर्विस. तो आपको अगर बहुत अच्छी लगती है उनकी सर्विस की, हमेशा वो टाइम पे आ जाते हैं और बहुत अच्छी सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं, तो आप सोचोगे अब नेक्स्ट एसी भी जो आप खरीदोगे तो हम कैरियर का ही एसी खरीदेंगे. तो इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स, राइट? So repeat sales is like a keyword that you should remember for customer support services. Do you understand? Okay, Vijay. So that is it for this class. Now take a break and meet me for a count.